Good morning, students. Welcome to GK class. Today we will do page number 17 to 20. Firstly, open page number 17. Fact file of Khushwant Singh is given to you. Khushwant Singh was a famous Indian novelist, journalist, lawyer, and politician. And he was born 2nd February 1915, and when he was died 20th March 2014. He was born in Hadli, Punjab, but now this Hadli is in Pakistan. He studied law at St. Stephen's College, Delhi, and later at King's College, London. After working as a lawyer, he joined Indian Foreign Services in 1947, and then he worked in India Radio in 1951 and UNESCO in 1956. Finally, he took up writing. Writing means he started writing books. His writing reflected real life experiences. He was well known for his wit, humor, sarcasm, and poetic expression. Meaning of sarcasm is criticize. That means to criticize someone. His famous books are The Mark of Vishnu, Train to Pakistan, A History of the Sikhs, Not a Nice Man to Know, Delhi, a novel, I Shall Not Hear the Nightingale, etc. He was also the editor of the Illustrated Weekly and the newspaper Hindustan Times. Editor means editing karna. His humorous columns in various magazines and newspapers were very popular. He was honored with Padma Bhushan in 1974 and Padma Vibhushan in 2007. Padma Bhushan and Vibhushan means medal which is made of bronze. He was honored by a medal made of bronze. Khushwant Singh, like a true writer, kept writing till the end of his life. He was a true writer and he write at the end of his life. This is a history, or you can say life story of Khushwant Singh. So question can come like when he was born, when he died, or some famous book about him, when he was honored with Padma Bhushan and Padma Vibhushan. So this type of questions can come in exam. Now come to page number 18. On page number 18, test your wisdom. Read the given clues and answer them in one word. You have to answer in one word. First, one who knows everything is known as omniscient. Omniscient means who knows everything. जिसको सब कुछ पता होता है उसको क्या बोलते हैं? omniscient. In born skills और talent is a, मतलब किसी में क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही बोर्न होते ही कुछ स्किल्स होते हैं या टैलेंट होता है. आपने कभी न्यूज़ चैनल पे देखा हो, जैसे कोई बच्चा 3 या 4 इयर्स का है या 5 इयर्स का, तो उसको पूरे वर्ड की नॉलेज होती है, बहुत वाइड उसकी नॉलेज होती है. जब दैट मीन्स ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड. गॉड गिफ्टेड मीन्स वो टैलेंटेड है, बोर्न से ही टैलेंट है उसके अंदर. आपने ये भी देखा होगा किसी बच्चे की मतलब कैलकुलेशन पावर बहुत हाई होती है, वो बड़ी इजीली बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन कर लेता है. दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ गॉड गिफ्टेड. अ वेरी रिलीजियस पर्सन इज़ कॉल्ड. रिलीजियस मीन्स जो गॉड पे यकीन करता है. दैट मीन्स गॉड फियरिंग, जिसको गॉड का डर है, जो गॉड पे विश्वास करता है, दैट मीन्स गॉड फियरिंग. अ गुड हेल्प और अपॉर्चुनिटी इज़ गॉड सेंट. नेक्स्ट, वन हु इज़ ऑल पावरफुल. जो पूरा पावरफुल है उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट. पावरफुल मीन्स ओमनीपोटेंट. एंड वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. जो हर जगह पे प्रेजेंट है, इवन इन एवरी मोलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर.
So we will use word here omnipresent. Omnipresent means which is present everywhere. Next, second is write the two words that join together to form following words. Brunch. Brunch is made by two words breakfast plus lunch. Breakfast plus lunch मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रंच. Smoke, as you know that smoke is smoke plus fog. Fog and smoke मिलकर के क्या बनाएंगे? Smoke. Email. E means electronic, M means mail. Electronic mail को हम क्या बोलते हैं? Camcorder means cam means कैमरा. कैमरा प्लस रिकॉर्डर. कैमरा भी है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है उसके अंदर, तो कैमरा प्लस रिकॉर्डर क्या होगा? कैमकॉर्डर. पिक्सल. आप कैमरा जब मोबाइल खरीदते हो तो उसमें बोलते हो ना कितने पिक्सल, मतलब उसकी कितनी क्लैरिटी है, तो पिक्सल मीन्स पिक्चर प्लस एलिमेंट. नेक्स्ट इज एजुटेनमेंट. तो इट इज़ मेड बाय टू वर्ड्स एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट. एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेन होना, दिस इज़ नोन एज एजुटेनमेंट. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स. और ये आप मैचिंग पहले ऑलरेडी कर चुके हो. दिस इज़ टेस्ट ऑफ विजडम जो आप पहले कर चुकी हो. कुछ क्वेश्चंस उन्हीं के आंसर देने हैं आपको. बोन वोवेज, ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं इंग्लिश में? बेस्ट ऑफ जर्नी. मतलब ये ऐसी इंग्लिश है जो पूरे यूनिवर्स में यूज़ की जाती है. बोन वोवेज, जब किसी पर्सन को बेस्ट ऑफ जर्नी बोलते हैं हम, तब क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? बोन वोवेज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. जो कोई टॉपिक है, जब हम बोलते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सिक्स्थ सेंस. सिक्स्थ सेंस मीन्स टू हैव एन इंट्यूशन. जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे पहले से इंट्यूशन हो रही थी कि ये होने वाला है, ये मेरी सिक्स्थ सेंस वर्क कर रही है, कि मेरी सिक्स्थ सेंस बोल रही है कि आज कुछ ऐसा होगा. नेक्स्ट इज पुल अप वन सॉक्स. पुल अप वन सॉक्स मीन्स टू गेट रेडी फॉर एक्शन, मतलब किसी काम के लिए तैयार हो जाना. तो हम क्या बोलते हैं? पुल अप वन सॉक्स, मतलब पूरा कस लो अपने और तैयार हो जाओ काम के लिए. टू कैच जेड्स, ये आपको मैंने पहले भी बताया था. जेड, जब स्लीपिंग के लिए आप कोई कार्टून देखते हो तो उस कार्टून के ऊपर जब वो सो रहा होता है जेड जेड की सिंबल बना देते हो. दिस सिंबल रिप्रेजेंट स्लीपिंग सिंबल. टू कैच जेड मीन्स टू स्लीप. 5 लाइन फ़नी पोएम. कोई फ़नी पोएम है और वो 5 लाइन्स की है, तो 5 लाइन्स फ़नी पोएम के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लिमेरिक. क्लियर हुआ? लिमेरिक मीन्स फ़नी पोएम, और वो फ़नी पोएम्स कितनी लाइन्स की है? 5 लाइन्स की. नाउ कम टू पेज नंबर 19. कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी. एनोलॉजी मीन्स सिमिलर वर्ड्स आपको बताने हैं. लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी, एंड कार्टोग्राफर जो होता है वो किसके बारे में बताता है? हमें मैप्स के बारे में. कैलीग्राफर क्या करता है? राइटिंग करता है, मतलब उसकी कैलियोग्राफी का मतलब है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग में राइट करना. ठीक है. डीजे मीन्स डिस्क जॉकी, और डिस्क जॉकी डीजे जो है वो म्यूज़िक प्ले करता है. नेक्स्ट है बैचलर. इसका आपको सिमिलर बताना है, मतलब जेंडर आपको चेंज करना है. बैचलर के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करते हो? स्पिंस्टर. अगर कोई बॉय बैचलर है तो उसके लिए आप बोलते हो बैचलर, मतलब जो अनमैरिड है. और अगर कोई गर्ल अनमैरिड है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? स्पिंस्टर. क्लियर हुआ? अनमैरिड गर्ल के लिए हम वर्ड यूज़ करें स्पिंस्टर. फियोंसे मीन्स बॉय हो गया, मतलब जब किसी की एंगेजमेंट हो जाती है तो एंगेजमेंट के बाद हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फियोंसे. और फियोंसी जो गर्ल है जिसकी एंगेजमेंट हुई है, दैट इज़ नोन एज फियोंसी. मतलब अभी मैरिज नहीं हुई, सिर्फ दे गेट एंगेज्ड, देन वी विल यूज़ वर्ड फियोंसी. लैड, लेस. नेक्स्ट इज मेड सर्वेंट. तो मेड के लिए क्या हो जाएगा? मैन सर्वेंट. लैड मीन्स बॉय एंड लेस मीन्स गर्ल. नेक्स्ट, fifth is read the given hints carefully and form words that begins with SQ. A small group of policemen. पुलिसमैन की जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वाड. दैट मीन्स टीम ऑफ पुलिसमैन. पुलिसमैन की जो टीम होगी उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करें? स्क्वाड. अ गेम प्लेड विद अ रैकेट एंड अ रबर बॉल.
रबर बॉल और रैकेट के साथ में जो गेम प्ले की जाती है दैट इज़ नोन एज स्क्वैश. A shape having 4 sides. You all know that 4 sides is square. Square containing 4 sides and all these sides are equal. The noise made by a mouse. Mouse जो sound produce करता है उसको हम क्या बोलते हैं? Squeak. To exert pressure in order to extract juice. For example, lemon juice जब हम निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? Squeeze करते हैं. Squeeze करते हैं तो क्या होगा? Juice extract होगा. Means बाहर आएगा, juice बाहर निकलेगा. A furry animal, squirrel. Furry means इसके फर होंगे. Furry animals क्या है? Squirrel. Next is write the names of the object which are associated with the following sounds. Ticking off. Clock की sound कैसे होती है? टिक 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 sound आती है ना आपको. This is a sound of clock. Screeching of brakes. जब आप साइकिल की ब्रेक लगाते हो तो साउंड कैसे आती है? क्रीच की साउंड आती है आपको, है ना. नेक्स्ट इज़ अ वेल ऑफ अ सायरन. जब सायरन बजता है तो उसकी साउंड कैसे होती है? बड़ी डीप सी साउंड आती है सायरन की. नेक्स्ट इज़ बैंगिंग ऑफ. डोर को जब आप बंद करते हो तो उसकी साउंड कैसे आती है? बैंग, बैंगिंग. हॉर्न की साउंड कैसे होती है? उसको क्या बोलते हैं? होंकिंग. हॉर्न को क्या बोलते हैं? होंक करना, होंक द हॉर्न्स. डोर को, विंडो को या बेंच को जब हम करते हैं तो क्या बोलते हैं? बैंग, बैंग द डोर्स. डोंट बैंग द विंडो, डोंट बैंग द बेंच, है ना. मतलब डोर से, बेंच से जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? बैंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम. जिंगल ऑफ. जैसे आप बोलते हैं ना जिंगल बेल, जिंगल बेल. तो दिस इज़ अ जिंगल मीन्स आप बेल से जब साउंड प्रोड्यूस करोगे तो क्या वर्ड यूज़ करोगे? जिंगल. बेल या फिर कॉइन्स की जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? जिंगल वर्ड. नेक्स्ट इज पिरामिड मीन्स ट्राइंगल आपको शेप गिवन है, ठीक है. तो आपको कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज़ अ लेटर टू शो पार्किंग. आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है तो उसके लिए क्या सिंबल बना होता है? पी का सिंबल बना होगा. दैट मीन्स यू कैन पार्क योर कार और एनी व्हीकल हेयर. नेक्स्ट इज़ द प्रपोजिशन यूज्ड फॉर थिंग्स. थिंग्स के लिए फॉर एग्जांपल बुक, पेंसिल, इसके लिए आप क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हो? इट. अ टाइटल वर्ड और वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ मैन. अगर हम किसी पर्सन, मैन की स्पेशली रिस्पेक्ट करें तो हम क्या बोलते हैं उनको? सर. वेरी स्मॉल मीन्स टीनी. टीनी ऑब्जेक्ट मीन्स स्मॉल. और यू कैन से टाइनी ऑल्सो. टाइनी और टीनी मीन्स स्मॉल. विदाउट कंपनी दैट मीन्स अलोन. मतलब किसी पर्सन की कोई कंपनी नहीं है, अकेला है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अलोन. शॉर्ट फॉर्म ऑफ चैम्पियंस. जैसे आप आजकल देखते भी हो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों के तो उसमें बोलते हैं लिटिल चैम्प. चैम्प मीन्स चैम्पियन की शॉर्ट फॉर्म है. ये तो लिटिल चैम्प है, चैम्पियन. लाइन एट विच अर्थ एंड की अपीयर्स टू, अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट. अर्थ एंड स्काई जो जहाँ पे मीट करते हैं जिस पॉइंट पर, उसको क्या बोलते हैं? होरिजन. जैसे आप मैथ्स में भी करते हो बेटा, होरिजन आपकी एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो उसके लिए आप होरिजन वर्ड भी यूज़ करते हो. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो होरिजन भी बताते हो आप. वेरी क्लोज. वेरी क्लोज मीन्स इंटीमेट. रेगुलर मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड बिटवीन टू लिमिट्स. रेगुलर मूवमेंट मीन्स ऑसिलेट करना. फॉर एग्जांपल पेंडुलम जो है वो अपने फिक्स पॉइंट पर ऑसिलेट करता है. मतलब दो लिमिट हैं उसकी, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. उन्हीं पॉइंट्स के बीच में क्या करता है? ऑसिलेट करता है, मूव करता है. तो इस रेगुलर मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशंस. एंड स्पेशली ऑसिलेशन किस में होगी? पेंडुलम. आपके घर में जो क्लॉक है उस क्लॉक में पेंडुलम लगा होगा तो वो पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेट करता है, मतलब मूव करता है अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो. दिस इज नोन एज ऑसिलेशन. नाउ रीड द इनसर्कल लेटर्स ऑन द लेफ्ट दैट फॉर्म अ वर्ड. लेफ्ट में जो आपने सर्कल का रखे हैं, आपको बुक में सर्कल्स गिवन है, तो इन सर्कल से भी एक वर्ड बन रहा है. उस वर्ड को आपको बताना है कौन सा वर्ड बनेगा? पिस्टैशियो. पिस्टैशियो बेटा एक ड्राई फ्रूट है जो आप यूज़ करते हो. पिस्ता, पिस्टैशियो. नेक्स्ट इज
Read the given clues and fill in the words in the magic square so that the same words can be read both across and down. मतलब टॉप टू बॉटम एंड अप एंड डाउन जब आओगे तो सेम वर्ड बनेगा आपका, लेफ़्ट टू राइट एंड अप डाउन. साउंड मेड बाय बॉम्ब. बॉम्ब की जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट. एन इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ लाइट और बीम. दिस इज़ लेज़र. लेज़र लाइट. लेज़र लाइट का कहाँ यूज़ किया जाता है? आइज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेसी कराने के लिए जाते हैं उसमें लेज़र लाइट डाली जाती है. लेज़र लाइट से क्या होता है, जो आपकी आइज़ हैं बिल्कुल सही हो जाती है. जैसे कुछ पर्सन को दिखाई नहीं देता तो वो लेसिक करा के आते हैं. लेसिक में क्या करते हैं? लेज़र लाइट, मतलब लाइट की एक बीम डाली जाती है और जिससे पर्सन को क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है. फुल फॉर्म ऑफ लेज़र इज़ लाइट एम्प्लीफिकेशंस बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन. और लेज़र लाइट जब की जाती है बेटा आइज़ में, तो ये बीम ऑफ लाइट क्या करती है? आपके रेटिना को प्रॉपर प्लेस पर पुट कर देगी. एक्चुअल में होता क्या है, दो तरह की डिजीज़ होती है, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. मतलब कुछ पर्सन्स को नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं और कुछ पर्सन्स को फार ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं. मतलब यंग एज के जो बच्चे हैं या लोग पर्सन हैं उनको क्या होता है, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे जाते हैं. और जो ओल्ड एज हो जाते हैं, हमारी दादी वगैरह हैं, उनको क्या होता है कि दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं बट पास के ऑब्जेक्ट जैसे नीडल है, नीडल में थ्रेड डालना, वो दिखाई नहीं देता. तो लेज़र लाइट से क्या होगा, रेटिना प्रॉपर प्लेस पे आ जाता है और आपकी आइज़ से आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है साफ. आपके आइज़ से साफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है बाय द साइड मीन्स. इसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? असाइड. अ ग्रास दैट ग्रोज नियर वेट ग्राउंड. गीले ग्राउंड के पास जो ग्रास ग्रो करती है उसको क्या बोलते हैं? सेज. ग्रीन गिफ्ट ऑफ नेचर इज़ ट्रीज. ट्री इज़ ग्रीन गिफ्ट ऑफ नेचर. सो ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज. डोंट कट ट्रीज because trees give you oxygen and without trees life is not possible. You are taking food from trees, so trees are green gift of nature. So page number 17 to 20 are complete. So today your work is you have to write and learn page number 17 to 20. Okay beta, and have a nice day.